مجھے لگتا ہے اب ہمیں رخصتی کر دینی چاہیے، کافی ٹائم ہو گیا ہے، جاتے جاتے ٹائم لگ جائے گا۔ کاشان کی بات پر سب گھر والے ٹھٹکے سوائے سبحان لوگوں کے۔ کیا مطلب رخصتی؟ رخصتی کی تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی تھی۔ حسن شاہ اس کی طرف دیکھ کر بولے، بابا فضا ساتھ رخصتی بھی چاہتی ہے۔ کاشان نے ان کے سر پر بم پھوڑا، لیکن کاشان فائق کے کچھ بولنے سے پہلے ہی وہ بول اٹھا، کبھی نہ کبھی تو رخصتی کرنی ہے، تو ابھی کیوں نہیں؟ اور رہی پڑھائی کی بات، پہلے بھی وہ پرائیویٹ پڑھ رہی تھی، اب بھی پڑھ لے گی، سبحان نے کون سا منع کرنا ہے؟ نکاح کے بعد ویسے بھی لڑکی اپنے شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ کاشان کی بات پر سب ہی چپ رہے۔ کچھ ہی دیر میں رانیہ فضا کو چادر اوڑھے باہر لائی۔ دیا ہادیہ کی گود میں موجود تھی، جسے کوئی اپنی نیلی آنکھوں سے ٹکر ٹکر گھور رہا تھا۔ فضا کو دیکھ کر ایک پل کے لیے سبحان کو اپنا دل بند ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ سبز آنکھوں والی ڈال اس کے لائے ہوئے ڈریس میں اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ سبحان نے جلدی سے اپنی نظریں پھیری کہ کہیں اس کی ہی نظر نہ لگ جائے۔ فضا سب سے پہلے حسن شاہ کے گلے لگی۔ ہمیشہ خوش رہو، وہ محبت سے اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولے۔ پھر اظہر شاہ سے پیار لیا۔ باری باری وہ سب سے ملی۔ جب لائبہ کی چنگاڑتی ہوئی آواز گونجی، اس نحوست کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ، کم سے کم اس نحوست سے ہماری جان تو چھوٹے گی۔ وہ نفرت سے پھنکاری۔ اس کی بات پر سبحان نے مٹھیاں بھینچی لیکن بولا کچھ نہیں۔ لیکن آپی، اس سے پہلے ہادیہ کچھ بولتی۔ فائق کی بات نے فضا کے دل میں فائق کے لیے جو تھوڑا بہت احترام تھا وہ بھی آج ختم ہو گیا تھا۔ لائبہ بالکل صحیح کہہ رہی ہے، اس کو بھی اپنے ساتھ ہی لے جاؤ، اور میں نہیں چاہتا اس نحوست کا سایہ بھی میرے ہونے والے بچے پر بھی پڑے۔ وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ اس کی بات پر لائبہ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ ایک ہفتے پہلے ہی لائبہ کی طبیعت خرابی کی وجہ سے سدرا بیگم کے کہنے پر وہ اسے ڈاکٹر کے لے کر گیا تھا، جہاں انہیں لائبہ کے ماں بننے کی خوشخبری ملی، جسے سن کر فائق سمیت سب گھر والے بہت خوش تھے۔ فائق لائبہ کا ہر طرح سے خیال رکھتا تھا، جس سے لائبہ کو اپنا آپ ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اس بچے کے ذریعے فائق کے دل میں جگہ بنانے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ سبحان یا کوئی اور کچھ بولتا، کسی نے فائق کو زور سے دھکا دیا، جس سے وہ لڑکھڑا کر چند قدم پیچھے ہوا۔ خبردار، اگر آپ نے میری اینجل کے بارے میں بھی اور کچھ گندا بولا، نہیں تو میں آپ کا سر پھاڑنے میں دیر نہیں لگاؤں گا۔ وہ اپنی نیلی آنکھوں سے، جو اس وقت لال سرخ ہو چکی تھی، ان سے دیکھتا ہوا غرا کر بولا۔ نوفل اور رانیہ تو اپنے بیٹے کی حالت کو دیکھ کر ہی حیران ہو گئے۔ تیرا بیٹا تو ابھی سے مجنوں کے لسٹ میں پہلے نمبر پر آ گیا، سبحان نوفل کے کان میں سرگوشی کرتا ہوا بولا۔ نوفل اسے بس گھور کر رہ گیا، جبکہ فضا سمیت باقی گھر والے ہکا بکا سے اس 6 سال کے بچے کو دیا کے لیے لڑتا دیکھ رہے تھے۔ اگر میری اینجل کو آپ نے دوبارہ کچھ بولا نا تو جان سے مار دوں گا، وہ غصے سے وارن کرتا ہوا بولا۔ سبحان تو اس کے انداز پر اش اش کر اٹھا۔ دیکھ لے مسٹر فائق شاہ، دیا اکیلی نہیں ہے، اس کے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں۔ ویسے بھی پہلے ہی آپ اسے اپنی بیٹی ماننے سے انکار کر رہے ہیں، تو اب سے وہ آپ کی بیٹی ہے بھی نہیں، اب سے وہ صرف اور صرف میری بیٹی ہے، سبحان سکندر کی بیٹی دیا سبحان سکندر۔ وہ اس کی طرف دیکھتا ہوا سنجیدگی سے بولا۔ اس کی بات پر فضا نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ دیا اب قانونی طور پر میری بیٹی ہے، میں اس کی کسٹڈی لے چکا ہوں۔ آپ کو مبارک ہو آپ کا نیا بچہ۔ آخری بات وہ انتہائی سنجیدگی سے بولا۔ فضا جانم چلیں گھر، لیٹ ہو رہا ہے، سبحان اس کی طرف دیکھ کر بولا تو وہ ہوش میں آتے ہی ہاں میں سر ہلا گئی۔ سبحان نے آگے بڑھ کر ہادیہ کی گود سے دیا کو لیا۔ بابا کی جان، وہ محبت سے اس کے دونوں گالوں پر بوسہ دیتے ہوئے بولا تو وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ لائبہ نے نفرت اور حقارت سے یہ سارا منظر دیکھا۔ فضا قدم قدم چلتی ہوئی فائق کے سامنے آئی اور اس کے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، مبارک ہو مسٹر فائق شاہ آپ کو، آپ کا بچہ، آپ کا گھر، آپ کی بیوی۔ اب سے میرا اور دیا کا اس گھر سے، اس گھر والوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج سے میں آپ سب سے اپنا ہر تعلق توڑتی ہوں۔ حسن شاہ غصے سے اسے دیکھتے ہوئے بولے، میں بالکل ٹھیک بول رہی ہوں، دیا تو پہلے ہی آپ سے سب کے لیے مر گئی ہے، آپ سمجھ جائیں گا، میں بھی اپنی بیماری سے لڑتی لڑتی مر گئی، اور
शायद जल्द ही मर जाऊं। उसकी बात पर फाइक ने तड़प कर उसकी जानिब देखा। फिक्र मत करें, आपको कोई तकलीफ नहीं दूंगी। और हाँ, मेरे जनाजे में भी आने की ज़रूरत नहीं है, मेरा शौहर ही काफ़ी है मेरे लिए। फिज़ा सुबहान तड़प कर बोला, और याद रखिएगा, एक दिन ऐसा भी आएगा कि आप इसे देखने के लिए, प्यार करने के लिए तरसोगे। और मैं फ़िज़ा सुबहान सिकंदर का ये वादा है कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ, मैं आपको कभी भी इसकी शक्ल देखना भी नसीब नहीं करूँगी। वो सपाट लहजे में कहती, एक नम नज़र अपने घर पर डाले सुबहान के साथ अपनी ज़िंदगी के नए सफ़र पर रुखसत हो चुकी थी। फाइक कितनी ही देर साकत नज़रों से खड़ा दरवाजे को देखता रहा, जहाँ से वो कुछ देर पहले गई थी, अपने सारे ताल्लुक़ ख़त्म करके। फाइक, आप ठीक हैं? फाइक लाइबा के हिलाने से होश में आया और बगैर किसी की तरफ देखे बाहर निकल गया। रात के अंधेरे में इस वक्त गाड़ी सड़क पर फराटे भरती हुई दौड़ रही थी। फिजा आंसुओं से लबरेज अपनी सब आंखों से बाहर की जानब देख रही थी, जबकि दिया फिजा की गोद में सोई हुई थी। नौफिल और रायना अपनी गाड़ी में थे। नौफिल और रानिया अपनी गाड़ी में थे। ड्राइविंग करते सुबहान गाहे बगाहे नजरें उस पर भी डाल लेता था, जो सपाट नज़रों से बाहर की जानिब देख रही थी। उसकी ऐसी हालत देख सुबहान के दिल में टीस उठी। उसे देख सुबहान ने एक लंबी सांस हवा के सुपुर्द की और ड्राइविंग की जानिब मुतवज्जो हो गया। कुछ ही देर में गाड़ी खान विला पहुंच चुकी थी। चौकीदार ने गाड़ी देखते ही फौरन दरवाज़ा खोला। एक ही झटके में गाड़ी अंदर दाखिल हो चुकी थी। आहन के काफ़ी शोर मचाने के बावजूद रानिया और नौफिल सुबह आने का वादा करके वहां से ही सीधा अपने घर जा चुके थे। सुबहान गाड़ी से निकलकर फिजा की जानिब आया और उसकी गोद से सोई हुई दिया को उठाकर अपने कंधे पर लगा और एक नज़र फिजा को देखा, जो गुमसुम सी बैठी हुई थी। फिजा, फिजा जानम, घर आ गया है। सुबहान की आवाज़ से वो होश की दुनिया में वापस आई और ख़ुद को संभालती हुई गाड़ी से बाहर निकली। उसके सर में इस वक्त शिद्दत से दर्द हो रहा था, जो कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा था, जिसे वो बेमुश्किल नज़रअंदाज कर रही थी। आप ठीक है? सुबहान उसे देखकर फिक्रमंदी से बोला तो वो हाँ में सर हिला की, लेकिन वो फिर भी मुतमईन नहीं हुआ था। वो उन दोनों को लिए अंदर की जानिब बढ़ा। फिजा चुपचाप उसके पीछे अंदर दाखिल हुई। इस वक्त घर में मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी। मुलाजिम सब अपने अपने क्वार्टर्स में जा चुके थे। सुबहान उसे लिए ऊपर अपने कमरे में आया। वो दरवाज़ा खोलकर कमरे में दाखिल हुआ और दिया को बेड पर लेटाकर मोहब्बत से उसके सर पर बोसा दिया। उसके पीछे ही फिजा कमरे में दाखिल हुई। उन दोनों को देखकर सुबहान को आज अपना सब कुछ मुकम्मल सा लगा। वो मोहब्बत से फिजा को देख रहा था, जो बमुश्किल दर्द से फटते सर को झुकाए खड़ी हुई थी कि तभी जेब में रखा सुबहान का फ़ोन रिंग हुआ, जिससे वो सख्त बदमज़ा हुआ और जेब से फ़ोन निकाल कर नंबर देखा, जहाँ कोई ज़रूरी कॉल आ रही थी। आप यहाँ बैठे, मैं बस अभी आया, वो कहते ही फ़ोन कान से लगाए कमरे से निकल गया। अभी वो फ़ोन सुनकर मुड़ा ही था जब खान विला में फिजा की दर्दनाक चीखें गूंज उठी। वो हवास भागता कमरे की जानिब भागा। वो जैसे ही कमरे में पहुंचा, सामने का मंजर देखकर अपनी जगह साकत हो गया, जहां फिजा का दुपट्टा चादर फर्श पर पड़ी हुई थी और वो खुद दुपट्टे से बेनियाज खिड़की के पास अपना सर थामे बैठी चीख रही थी। उसके चीखने की आवाज़ पर दिया भी उठ चुकी थी। फिजा आंखों से आंसू मुसलसल जारी थे। सुबहान उसके चीखते पर होश में आया था और तड़प कर उसकी जानिब बढ़ा और उसके पास घुटनों के पर बैठा। फिजा, फिजा मेरी जान, क्या हुआ? मुझे बताओ क्या हुआ है? वो मोहब्बत से उसका चेहरा हाथों के प्याले में भरे हुए बोल रहा था, जो अपने सर के बालों को बेदर्दी से नोच रही थी। उसकी हालत देख सुबहान को अपना दिल बंद होता हुआ महसूस हुआ। मेरी जान, मुझे बताओ क्या हुआ? अपने सुबहान को बताओ। सुबहान को फिजा की हालत बहुत तकलीफ दे रही थी। मम्मा, मेरे सर में दर्द है, ऐसा लग रहा है मेरे सर की रगें दर्द से फट जाएंगी। वो बमुश्किल दर्द जब्त करते हुए टूटे फूटे लफ्ज़ों में बोली। उसकी मुसलसल बिगड़ती हालत देखकर सुबहान के हाथ पांव फूल रहे थे कि तभी अचानक फिजा का जिस्म साकत हुआ और वो बिल्कुल बर्फ़ की तरह ठंडी हो गई। उसने
मजामत करना भी छोड़ दी। सुभान ने अपने सीने से उसका सर उठाकर देखा तो वो बेहोश हो चुकी थी। उसकी हालत देख सुभान की आंखें नम हुई। उसने जल्दी से फिजा को गोद में उठाकर बेड पर लिटाया और जल्दी से डॉक्टर को कॉल की। डॉक्टर को कॉल करने के बाद वो दिया की जानिब मुतवज्जो हुआ, जो फिजा की चीखों से डर कर जाग गई थी। क्या हुआ बाबा की जान? रोते नहीं, बाबा की बहादुर बेटी। वो इसे अपने सीने से लगाए मोहब्बत से बोल रहा था। कुछ ही देर में वो दोबारा से नींद की आगोश में जा चुकी थी। तभी सुभान का फ़ोन बज उठा। उसने जल्दी से उसे बेड पर लेटाकर फ़ोन यस किया और डॉक्टर को कमरे में लाने का बोला। सुभान ने जल्दी से आगे बढ़कर फिजा के ऊपर कंबल ओढ़ा। तभी दरवाज़ा नॉक हुआ। इजाज़त मिलने ही डॉक्टर अंदर दाखिल हुई। सुभान ने डॉक्टर को फिजा की हालत का बताया तो डॉक्टर जल्दी से फिजा का चेकअप करने लगे। सुभान परेशानी से फिजा को देख रहा था, जो सबसे बेनियाज आंखें बंद किए हुए थी। क्या हुआ डॉक्टर, ये ठीक तो है ना? सुभान डॉक्टर की तरफ देखता परेशानी से बोला, मिस्टर खान, ये आपकी क्या लगती हैं? मेरी बीवी है तो आपको पता होगा इन्हें क्या हुआ है। जी पता है, वो तकलीफ से बोला। मिस्टर सुभान, जैसे मरीज़ की हालत है या जैसे इनकी कंडीशन है, इस हिसाब से जितना इनको हो सके स्ट्रेस से दूर रखें, इतना ही इनकी ज़िंदगी के लिए अच्छा है। जब जब ये स्ट्रेस लेगी तब तक इनकी हालत ऐसी ही होगी, जिसके लिए मैं आपको मेडिसिन लिख देती हूँ। अगर मेडिसिन से इनकी कंडीशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो इनका हमें जल्दी से जल्द ट्रीटमेंट शुरू करना पड़ेगा और प्लीज़ इन्हें स्ट्रेस वाली चीज़ों से दूर रखें, नहीं तो या तो ये कोमा में जा सकती हैं या इनका बचना मुश्किल होगा। डॉक्टर की बात सुनकर उसने तकलीफ़ से बेमुश्किल सर हिलाया। अभी तो मैंने इन्हें नींद का इंजेक्शन लगा दिया है, कल सुबह तक होश में आ जाएंगी। वो अपने प्रोफेशनल अंदाज में गोया हुई तो वो डॉक्टर का शुक्रिया अदा करता उन्हें बाहर तक छोड़ आया। वो कमरे में वापस आया तभी उसकी नज़र फिजा पर पड़ी, जो नींद के इंजेक्शन की वजह से सो रही थी। उसे देख उसने तकलीफ से आंखें मींची। सुभान ने फिजा को निकाह वाले ड्रेस में देखा, जिसको अभी उसने चेंज नहीं किया था। वो उसे इन कपड़ों में बेआराम देखकर कुछ सोचता हुआ फिजा के बैग की जानिब बढ़ा और उसमें से एक सिंपल ड्रेस निकालकर एक नज़र फिजा को देखा और कमरे की सारी लाइट्स ऑफ करके अपने कदम फिजा की जानिब बढ़ाए और झिझकते हुए उसके कपड़े चेंज किए। कपड़े चेंज करके उसने लाइट्स ऑन की और पूरे हक के साथ मोहब्बत से उसके माथे पर अपनी मोहब्बत की पहली मोहर जब्त की और एक नज़र उन दोनों पर डाले वॉशरूम में घुस गया। 15 मिनट बाद वो फ्रेश सा ट्राउज़र शर्ट पहने वॉशरूम से निकला और अपनी साइड पर आकर लेट गया। दिया को उठाकर उसने अपने सीने पर लिटाया और दूसरे हाथ से फिजा को अपनी जानिब खींचा। अपनी कुल कायनात को देखकर उसके चेहरे पर खूबसूरत सी मुस्कुराहट बिखरी, जिससे इसके गालों में मौजूद डिम्पल नमूदार हुए। सारे दिन का थका कुछ ही देर में वो नींद की वादियों में उतर गया। अगले दिन सुबह अजान की आवाज़ से सुभान की आंख खुली। उसने कसमसा कर अपने सीने पर देखा, जहां दिया अपने नन्हे नन्हे हाथ उसके चेहरे पर रखे मज़े से सोई हुई थी और एक नज़र अपने साथ सोई फिजा पर डाली। उन दोनों को देखकर सुभान के चेहरे पर खूबसूरत सी मुस्कुराहट आ गई। सुभान ने दिया के माथे पर बोसा दिया और अपनी जगह उसे लिटाकर खुद वॉशरूम में घुस गया। 10 मिनट बाद वो वज़ू करके वॉशरूम से निकला। फिजा की तबीयत का सोचकर उससे उठाना का इरादा तर्क करता खुद नमाज के लिए खड़ा हो गया। नमाज अदा करके उसने शुक्राने के नफिल अदा किए और अपने रब का ढेरों शुक्र अदा किया। नमाज अदा करके जैसे ही वो मुड़ा तो दिया को जागता देख सुभान मुस्कराया, जो मुसलसल अपने छोटे छोटे हाथों से फिजा को जगाने की कोशिश कर रही थी। सुभान ने फिजा की नींद का सोचकर उसने जल्दी से आगे बढ़कर दिया को अपनी गोद में उठाया। बाबा की जान उठ गई, वो मोहब्बत से हल्की आवाज़ में बोला तो वो खिलखिलाकर हंस दी। चलो आओ, हम बाप बेटी बाहर जाकर बातें करते हैं, मामा को सोने दो। वो मोहब्बत से उसका माथा चूमता हुआ बोला और दरवाज़ा बंद किए उसे लिए बाहर की जानिब बढ़ गया। उनके गए अभी 1 घंटा हुआ था जब फिजा ने अपने दुखते सर के साथ कसमसा कर आंखें खोली और एक लेटे हुए नज़र पूरे कमरे में दौड़ाई।
جو بالکل خالی تھا کہ اچانک اسے کل رات کا سارا واقعہ یاد آنے لگا۔ وہ جھٹکے سے اٹھی اور آس پاس نظریں دوڑائیں۔ دیا کو ڈھونڈنا چاہا لیکن بے سود۔ وہ جلدی سے بیڈ سے اٹھی اور بے چینی سے کمرے کا دروازہ کھول کے باہر نکلی۔ تبھی اس کے کانوں میں دیا کی کھلکھلاہٹیں گونجنے لگیں۔ وہ جلدی سے آواز کی سمت بڑھی۔ جیسے ہی وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی تبھی اس کی نظر سبحان اور دیا پر پڑی، جو ہر چیز سے بے نیاز ایک دوسرے کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھے۔ دیا جو سبحان کو گود میں بیٹھی اس کی بیئرڈ کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھی اور سبحان اس کی شرارتیں دیکھ مسکرا رہا تھا۔ فضا نے محبت سے اپنی آنکھوں سے یہ مکمل سا منظر دیکھا، لیکن اگلے ہی پل فضا جھٹکے سے اس کی جانب بڑھی اور کسی کو بھی کچھ بھی سمجھنے کا موقع دیے بغیر انتہائی بے دردی سے اس کے ہاتھ سے دیا کو کھینچا۔ اس اچانک افتاد پر سبحان شوق سا فضا کو دیکھنے لگا، جو بغیر کسی تاثر کے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ تبھی دیا کے رونے کی آواز سے دونوں اس کی جانب متوجہ ہوئے، جو فضا کے اس عمل سے ڈر کے مارے رونا شروع ہو چکی تھی اور روتے ہوئے مسلسل اپنے ہاتھ سبحان کی طرف بڑھا رہی تھی۔ فضا اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن ناکام، جب سبحان کی گمبھیر آواز گونجی۔ فضا، یہ کیا حرکت تھی؟ اس طرح کون بچے کو لیتا ہے؟ سبحان نرمی سے بولا اور بغیر اس کی سنے آگے بڑھ کر دیا کے بڑھتے ہاتھوں کو تھام کر اسے واپس اپنی گود میں لیا۔ اس کے پاس آتے ہی دیا چپ ہو گئی اور واپس سے اس کی بیئرڈ کے ساتھ کھیلنے میں مصروف ہو گئی۔ آپ پلیز جتنا ہو سکے میری بیٹی سے دور رہیں۔ میں نہیں چاہتی آپ کی وجہ سے میری بیٹی کو کوئی تکلیف ہو۔ میں ون اینڈ لاسٹ ٹائم بول رہی ہوں۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر سختی سے بولی، مسز، مجھے لگتا ہے آپ ابھی بھی نیند میں ہیں۔ کیا مطلب؟ فضا نے سخت نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ شاید بول رہی ہیں کہ یہ اب سے قانونی طور پر میری بیٹی ہے اور آپ مجھے اس سے ملنے سے نہیں روک سکتی۔ سبحان دیا کے ہاتھ نیچے کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر بولا، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ جب تک فائل بائی پیپرز پر خود سائن نہیں کرتے وہ دیا کسی کو بھی نہیں دے سکتے۔ وہ بھی دو بدو بولی، ڈیئر مسز، آپ شاید بھول رہی ہیں میرے لیے یہ کام اتنا بھی مشکل نہیں ہے اور آپ کے پیارے بھائی نے خود اپنے ہاتھوں سے مجھے یہ رحمت سونپی ہے جس کی وہ خود قدر نہ کر سکا۔ وہ دیا کی جانب دیکھ مسکراتے ہوئے بولا تو فضا غصے سے مٹیاں بھینچے اسے گھورتی رہ گئی۔ بھوک لگی ہے میری بیٹی کو؟ سبحان دیا کے گالوں کا بوسہ لیتا ہوا بولا، لیکن دیکھ وہ فضا کو ہی رہا تھا۔ دیا جو اس کے گالوں کو منہ میں ڈالے کو مسلسل کوشش کر رہی تھی۔ آپ فریش ہو جائیں تب تک میں ناشتہ لگواتی ہوں۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر کہتا دیا کو لیے کچن کی جانب بڑھ گیا اور وہ غصے سے پیر پٹکتی ہوئی واپس کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ فضا تن فن کرتی غصے سے کھولتی ہوئی کمرے میں واپس آئی۔ سبحان کا دیا پر حکم چلانا بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ فضا سر جھٹک کر فریش ہونے کے غرض سے واش روم کی جانب بڑھنے لگی، تبھی اس کی نظر صوفے پر پڑے نکاح کے ڈریس پر پڑی جو اس نے پہنا ہوا تھا۔ میں میرے کپڑے کس نے بدلے؟ وہ بڑبڑاتے ہوئے بولی اور ذہن سبحان کی جانب گیا۔ سبحان کی ذہن آتے ہی فضا کانوں تک سرخ ہوئی، لیکن پھر سب سوچے جھٹکتے ہوئے وہ بیگ سے اپنے کپڑے لیے واش روم میں گھس گئی۔ 10 منٹ بعد وہ فریش سی نہا کر واش روم سے نکلی اور شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے بال سلجھانے لگی، لیکن بار بار خیال اپنے کپڑوں کی طرف جا رہا تھا۔ تبھی دروازہ ناک ہوا اور ملازمہ اجازت ملتے ہی اندر داخل ہوئی۔ میم، سر نے بولا ہے اگر آپ تیار ہو گئی ہیں تو ناشتہ پر آ جائیں، وہ آپ کا ویٹ کر رہے ہیں۔ تو وہ سر ہلاتی ہوئی دوپٹہ اوڑھے اس کے پیچھے کمرے سے نکل گئی۔ ڈائننگ ٹیبل پر پہنچ کر اس نے ایک نظر سبحان کو دیکھا، جو فریش سا نکلا ہوا دیا کو گود میں لیے ہوئے مسکراتے ہوئے جذب لگ رہا تھا۔ فضا سر جھٹک کر ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی اور ناشتہ کرنے لگی، لیکن اپنے چہرے پر مسلسل کسی کی نظروں کی تپش محسوس کر کے اس نے سر اٹھا کر دیکھا، لیکن سبحان کو دیا میں مصروف دیکھ کر دوبارہ سے ناشتے میں مصروف ہو گئی۔ میس نینا ہو تو باپ کے ساتھ تو ماں کو بھول ہی جاتی ہے۔ فضا اپنا آپ اگنور ہوتا دیکھ کر بڑبڑاتے ہوئے بولی۔ اس کی بڑبڑاہٹ سن کر سبحان کے چہرے پر دلکش سی مسکراہٹ آ گئی جسے وہ ضبط کر گیا۔ میرے کپڑے کس نے چینج کیے؟ فضا گھبراتے ہوئے بولی۔
आप बताएं, मेरे अलावा किस में इतनी हिम्मत है कि वो आपको बिना लिबास के देखें? सुभान मुस्कुराहट दबाता हुआ संजीदगी से बोला। फिजा सुभान की बात पर सटपटाई और सुभान की खुद पर मौजूद गहरी नज़रों से घबराती हुई चुपचाप नाश्ता किए उठ खड़ी हुई और बगैर उसकी जानिब देखे कमरे की जानिब बढ़ गई। उसकी हरकत पर सुभान महफूज सा होता दिया की जानिब मतवज्जे हुआ। तभी सुभान का फ़ोन बज उठा। उसने फ़ोन निकाल कर यस किया। हेलो, हाँ बोलो। सामने वाले की बात सुनकर उसका चेहरा इंतहाई ज़ब्त से सुर्ख हो गया। गर्दन की रगें उभरने लगी। ठीक है, तैयारी करो, मैं पहुंच रहा हूँ, वो संजीदगी से कहता फ़ोन बंद कर गया और दिया को लिए कमरे की जानिब बढ़ गया। वो जैसे ही कमरे में वापस आया तो फिज़ा को बेड पर बैठे पाया। वो दिया को दूसरी जानिब बेड पर बैठाए इर्द गिर्द तकिया सेट किए वो अलमारी की जानिब बढ़ा और अपना एक ड्रेस लिए वॉशरूम में बंद हो गया। फिज़ा मुसलसिल उसकी कार्रवाई देख रही थी। 10 मिनट बाद वो फ्रेश होकर वॉशरूम से निकला और शीशे के सामने खड़े होकर अपने बाल सेट किए। वो तैयार होकर फिज़ा की जानिब बढ़ा। सुभान को अपनी जानिब आता देख फिज़ा की सांसें तेज़ हुई। वो दम साधे चुपचाप सुभान की कार्रवाई देख रही थी, जो साइड टेबल से मेडिसिन्स उठाकर इनका मायना कर रहा था। ये ले, वो इसकी जानिब मेडिसिन बढ़ाते हुए गंभीर आवाज़ में बोला। फिज़ा ने बगैर कुछ कहे मेडिसिन पकड़कर मुंह में रख ली। सुभान ने उसकी जानिब पानी का ग्लास बढ़ाया। उसके मेडिसिन लेने के बाद वो अपनी खूबसूरत आवाज़ में बोला, मुझे कुछ ज़रूरी काम के लिए बाहर जाना है, शाम तक वापस आ जाऊंगा। आप अपना और मेरी गुड़िया का बहुत सारा ख्याल रखना। सुभान दिया के गुलाबी फूले हुए गालों पर बोसा देते हुए नरमी से बोला और आगे बढ़कर मोहब्बत से फिजा के माथे पर बोसा दिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मैं जल्द वापस आने की कोशिश करूंगा। वो उसकी आंखों में मोहब्बत से देखता हुआ नरमी से बोला और एक नज़र उन दोनों पर डाले कमरे से निकल गया। फिजा तो सुभान की पेशकदमी पर शौक सी वैसे ही बैठी रह गई। इसे अभी भी अपनी माथे पर सुभान का लम्स महसूस हो रहा था। वो तीनों सर पर कैप पहने, चेहरे पर मास्क लगाए, काले कपड़ों में मलबूस इस वक्त अपनी पूरी टीम के साथ जंगल में मौजूद थे। वो अपनी सुर्ख होती आंखों के साथ सर्द नज़रों से आसपास का मायना करते हुए ब्लूटूथ में बोला, तुम सब तैयार हो? वो अपनी सर्द आवाज़ में संजीदगी से बोला, यस यस एसके। वो सब हम आवाज़ बोले। उन सब के लहजों में इस वक्त एक जुनून झलक रहा था, दुश्मनों को ख़त्म करने का जज्बा। वो सब अलग अलग हिस्सों में जंगल में आगे बढ़ रहे थे। थोड़ा आगे जाकर उन सबको एक बड़ा सा गोदाम नज़र आया। वो छुपते छुपाते आगे बढ़े। गाइस, मैं और नौफल सामने से अंदर दाखिल होंगे। काशान और वली, तुम दोनों पीछे के रास्ते से अंदर जाओगे। बाकी सब लोग पूरे गोदाम को चारों तरफ से घेर लो। वो सर्द लहजे में कहता आगे बढ़ गया। हाथों में पिस्टल थामे वो दोनों दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हुए, लेकिन अंदर का मंजर देखकर सुभान का खून खौल उठा। वहशत से उसने आंखें मींची, जहां एक आदमी एक लड़की की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश कर रहा था। सुभान ने बगैर देर किए सीधा उसके सर में गोली मारी। गोली की आवाज़ सुनकर बाकी आदमी भी बाहर निकले। सुभान और नौफिल ने बगैर देर किए उन सब के सर धड़ से अलग कर दिया। इस वक्त गुस्से से उनकी आंखें लाल सुर्ख हो चुकी थी। इनका बस नहीं चल रहा था सबको जिंदा जलाकर राख कर दे। कुछ ही देर में सुभान और उसकी टीम ने उन सबको धूल चटा दी थी। वहां मौजूद गोदाम के साथ साथ बाकी शहरों में मौजूद गोदाम भी कब्जे में ले चुके थे। वहां मौजूद 200-250 ग्राम ड्रग्स, 20 लड़कियां जो उन लोगों ने बाहर के मुल्क में स्मगल करनी थी। राइफल सब कुछ इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था। उन सब का एड्रेस चेक करके वली की ड्यूटी पर सब लड़कियों को उनके घर रवाना कर दिया गया था। शाकिर दादा, अब तो तुम ज़रूर आओगे, सुभान चमकती आंखों से बोला। वेलकम टू माई कंट्री, यू आर वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ योर माउथ, वो कहका लगाता हुआ सरगोशी में बोला। उसकी आंखों में एक चमक थी, एक जुनून था, जज्बा था। जो भी देख ले इन आंखों के जुनून में खो जाए। वहाँ से सारा काम निपटा कर वो सब 20 मिनट में वापस पहुँचे। उन सब के बैठते ही काशान ने दिमाग में पलता सवाल पूछ डाला, एसके, तुम्हारे ख्याल से शाकिर दादा पाकिस्तान आएगा? वो उसकी तरफ देखता हुआ संजीदगी से बोला,
जिस तरीके से हमने उसके बड़े बड़े ड्रग्स के अड्डों को नुकसान पहुंचाया है वो ज़रूर आएगा, ये जानने के लिए कि किसने उससे पंगा लेने की जुर्रत की है, एसके यकीन से बोला। तो उसकी बात पर सब ने हमें सर हिलाया। एसके, मूसा का क्या करना है अब? नौफिल की आवाज़ कमरे में गूंजी। एसके, मूसा का क्या करना है अब? नौफिल की आवाज़ कमरे में गूंजी। वली, क्या खबर है उसके बारे में? आजकल वो कहाँ पाया जाता है? वो उसकी तरफ देखता हुआ बोला। एसके, आजकल वो ज़्यादातर एक लड़की के साथ पाया जाता है, क्लब, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, हर जगह, वो तफसील से बताते हुए बोला। और वो लड़की कौन है? एसके सोचने वाले अंदाज में मुंह पर हाथ रखते हुए बोला। शाकिर दादा की बेटी। वली ने उन सब के सरों पर धमाका किया। व्हाट? सब एक साथ चौक से बोले। यस, उसने सर हिलाते हुए तस्दीक की। लेकिन वो शाकिर दादा की बेटी कैसे हो सकती है? एसके सोचते हुए संजीदगी से बोला। शाकिर दादा की फैमिली में उसकी बीवी जो एक पाकिस्तानी खातून थी और उसका एक बेटा और बेटी है। कुछ साल पहले एक हादसे में उसकी बीवी और बेटा मारे गए। बेटी अपनी किसी दोस्त के घर गई थी जिस वजह से वो बच गई थी। रिमशान शाकिर दादा की जान थी। दादा उसकी कोई बात भी रद्द नहीं करता था। जान बसती है उसमें। रिमशा को बस एक चीज़ अपनी तरफ मायल करती है जिसकी वो दीवानी है। वली उन सब की तरफ देखकर बोला। और वो क्या है? काशान उसकी तरफ देखकर बोला। मर्दों की पर्सनालिटी और खूबसूरती, जो मूसा यानी कछुए की खूबसूरती पर मर मिटी। वली आखिरी बात मुंह बनाते हुए बोला तो ना चाहते हुए भी सबके चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई। सुबहान के जाने के बाद फिजा कितनी ही देर साकित बैठी रही, तभी उसकी नज़र दिया पर पड़ी जो खेलने में मसरूफ थी। उसे देखकर दिया का खुद के साथ इख्तियार किया रवैया याद आने लगा। मीसनी न हो तो बाप मिलते ही माँ को कैसे भूल गई? फिजा बेध्यानी में नाराज़गी का इजहार करते हुए बोली। अब मैं भी तुमसे बात नहीं करूँगी। फिजा नाराज़गी से रुख मोड़ कर लेट गई। दिया जो फिजा की तरफ आने की कोशिश कर रही थी, माँ को यूं नाराज़ लेटा देख रही थी। दिया आगे बढ़कर मोहब्बत से फिजा के चेहरे पर हाथ फेर रही थी। फिजा जो सोने का नाटक कर रही थी, दिया की हरकत देखकर उसके चेहरे पर खूबसूरत सी मुस्कुराहट आ गई जिसे वो जल्दी छुपा गई। फिजा को कोई हरकत ना करता देखकर दिया की आंखों में नमी तैरने लगी और फिर वो कुछ ही देर में अपना स्पीकर फाड़ कर रोना शुरू हो चुकी थी। उसको यूं जोर जोर से रोता देखकर फिजा ने जल्दी से उसे उठाकर सीने से लगाया। दिया मेरी जान, मैं मजाक कर रही थी, रोते नहीं हैं मामा का अच्छा बच्चा। वो उसका माथा चूमते उसके पिचकारते हुए बोली तो वो सूसू करती हुई फिजा के गालों पर अपने लब रख गई, जिससे फिजा खिलखिलाकर हंस दी। ये उसका मनाने का तरीका था। जब भी फिजा उनसे नाराज़ होती थी तो वो ऐसे ही मनाती थी। चलो अब बस बहुत लाड हो गई, अब दिया नहाएगी। फिजा उसके बालों पर बोसा देती उसे उठाकर वॉशरूम की जानिब बढ़ गई। कुछ ही देर में वो उसे नहलाकर मुकम्मल टॉवल में लपेटे हुए बाहर लाई। फिजा ने उसे पिंक कलर की बारबी फ्रॉक पहनाई जिससे वो छोटी सी सब्ज आंखों वाली परी सचमुच में परी लग रही थी। फिजा ने उसे देख मोहब्बत से उसके दोनों गालों पर बोसा दिया और दिल ही दिल में कई बार उसकी नज़र उतारी। फिजा उसे बेड पर बिठाए खुद बाकी पहलावा सामान समेटने लगी। जब दरवाज़ा नॉक हुआ, आ जाए, इजाज़त मिलते ही मुलाजमा अंदर दाखिल हुई। मैम, वो नीचे नौफल साहब की फैमिली आई हुई है। मुलाजमा सर झुकाए अदब से बोली। ठीक है, आप जाकर चाय और कुछ लवाजमात का इंतज़ाम करें, मैं आती हूँ। तो मुलाजमा सर हिलाते हुए वहाँ से चली गई। फिजा की इस तरह रुखसत होकर जाने से किसी को भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा था सिवाय हादिया और काशान के। वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि फ़िज़ा इस तरह रुखसत होकर जाती। सब वापस अपनी रूटीन पर आ चुके थे। लाइबा और सिदरा बेगम ने फ़िज़ा के साथ साथ उस मनहूस से जान छूट जाने पर खुदा का लाख बार शुक्र अदा किया। लाइबा माँ बनने की वजह से आजकल सब घर वालों से अपने लाड उठा रही थी। हादिया को कभी कभी अपनी माँ और बहन की हरकतों पर सख्त गुस्सा आता था, लेकिन वो बेचारी फिर भी चुप रहती थी। फिजा के जाने के बाद फाइक काफ़ी वक्त अकेला दिल और दिमाग की जंग लड़ता रहा। दिल कहता था तूने अपने ही खून के साथ अच्छा नहीं किया, अपनी मोहब्बत की आखिरी निशानी की कदर तक नहीं की, आखिरत में क्या मुँह दिखाएगा आयशा को। दिमाग कहता था शुक्र कर उस मनहूस से जान छुटी जिसने
से तुम्हारी मोहब्बत छीन ली। अब तो अपने आने वाले बच्चे के बारे में सोच। आखिरी दिमाग और दिल की कश्मकश में जीत दिमाग की हुई और वो सब कुछ भुलाए अपनी नॉर्मल रूटीन पर वापस आ चुका था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हसन शाह को तो वैसे ही बिजनेस और सियासत से फुर्सत नहीं मिलती जो वो किसी को याद करे। इन सब को देखकर ऐसा लगता था जैसे इनको फिजा के होने या ना होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ा था। काशान अपने घर वालों के रवैये पर अफसोस के सिवा कुछ नहीं कर सकता था। उसने कई बार अपने रब का शुक्र अदा किया कि वो फिजा को उसके मुहाफिज के हवाले कर चुका है, जो बिना किसी गर्ज से उससे बेपनाह मोहब्बत करता है।